शुरू करें हम। कर दे शुरू। Good Yes, evening, Aman. ma'am. Yes, ma'am. We have seen direct क्या देखा था कल हमने? list, ma'am, last time. लिस्ट, राइट। तो लिस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है पाइथन में। नाउ टुडे वी विल सी डिक्शनरी। ओके, तो व्हाट इज डिक्शनरी? डिक्शनरीज आर यूज्ड टू स्टोर डेटा। जैसे लिस्ट में हम डेटा स्टोर करते थे, वैसे ही डिक्शनरी में भी हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इट स्टोर डेटा वैल्यूज इन की वैल्यू पेयर्स। डिक्शनरी में डेटा कैसे स्टोर होता है? इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर। Okay, again, like list, dictionary has some properties जैसे ordered, changeable and do not allow duplicate. List के क्या properties थे? Do you remember? List के properties क्या थे? List Ma'am, must be order mutable और insert कर सकते हैं, sort कर सकते हैं, remove कर नहीं सकते नहीं, हैं. ये Okay. properties मैं पूछ रही हूँ। ordered था या नहीं था list? order mutable And allow duplicates, right? वैसे डिक्शनरी के लिए डिक्शनरी इज ऑल्सो ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड का मतलब क्या होता है? Ascending होता है. starting with index. Yes, ordered means we can access the element using index. You can locate the elements in the dictionary. जैसे 0 पे कौन सा आइटम है, 1 इंडेक्स पे कौन सा है, 2 इंडेक्स पे कौन सा है, ऐसे आप लोकेट कर सकते हो। दैट प्रॉपर्टी इज ऑर्डर्ड, right? Then another is changeable. That means you can change the element. You can add the elements. You can once you create a dictionary, you can add elements into it. You can remove elements from dictionary, and you can change the elements in the dictionary. Okay, and then it do not allow duplicates. Okay, जैसे लिस्ट में हम डुप्लीकेट एलिमेंट भी स्टोर कर सकते थे, वैसे डिक्शनरी में आप डुप्लीकेट एलिमेंट स्टोर नहीं कर सकते. इट विल नॉट अलाउ डुप्लीकेट एलिमेंट. ओके, and here in near ordered, one star is given. So this star is for as of Python version 3.7, which dictionaries are ordered, right? तो अभी भी हम 3.7 के बाद का ही वर्जन यूज कर रहे हैं, तो उसमें डिक्शनरीज ऑर्डर्ड है, राइट? लेकिन ये जो वर्जन था, इसके पहले वाले वर्जन में डिक्शनरी वाज अनऑर्डर्ड. ठीक है, लेकिन एज ऑफ नाउ dictionaries are ordered, so you can use this. Dictionaries are collections which are ordered, changeable, and it does not allow duplicate. Okay, then list define कैसे करते थे हम? How do we define list? square bracket. Square bracket, right? वैसे dictionary is defined, written using curly brackets. Okay, in which you will have key value pair, so it will have keys and values. Okay, then dictionary items are presented in key value pair, and you can refer to any item using key. ओके, तो हम इसका एक प्रोग्राम देखेंगे, तो आपको सारे फंक्शनैलिटीज भी क्लियर हो जाएंगे और क्रिएट कैसे करना है वो भी क्लियर हो जाएगा. ठीक है, अभी तक कुछ डाउट है डिक्शनरी में? वहाँ स्क्रीन विजिबल नहीं हो रहा है. इतनी देर नहीं बताया.
मैं लगा मैम उसने शेयर किया। ठीक है मैं शेयर करती हूँ नाउ। यस मैम। विजिबल। यस विजुअल में। हाँ, तो ये सारे पॉइंट्स मैंने अभी डिस्कस किए। कुछ डाउट है इसमें? यू कैन जस्ट गो थ्रू द पॉइंट्स, आई विल वेट फॉर 2 minutes. Any doubt? No, ma'am. Okay, so let us see one program. We will write one program for dictionaries. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी हाउ टू क्रिएट डिक्शनरी। जैसे मैंने आपको अभी बताया। ओके, लेट मी शेयर द स्क्रीन। डिक्शनरी हम कैसे डिफाइन करते हैं? यूजिंग विच ब्रैकेट्स? यस, करली। curly bracket, right? So here we will create one list, define some variable. Yes, yes, student info equal to, in curly bracket we will define the list. Okay, तो यहाँ पे हम list अच्छे से define करेंगे, which will store some student information, right? So inside dictionary what is there? Key value pair. Okay, so this, sorry, you have to give values in key value pair, जैसे name and colon its value. Okay, then next we'll store age and its value. Okay, here you have to give comma to separate the items. Okay, then we will store courses, and here in courses we can give list. Okay, I will give here a list. So your value can be integer, it can be string, it can be float, it can be list, and even it can be dictionary. Okay, you can store another dictionary inside one dictionary. Okay, तो यहाँ पे हम देंगे courses. Got it? This is how we create the dictionary. In curly bracket you have to give name value, sorry, key value pair. Okay, so this name is key, Kiran is value, age is key, 21 is value, courses is key, and this list of courses is value for this element. Got it? We can print. कल जैसे हमने लिस्ट के लिए किया था वैसे ही हम सारे फंक्शंस देखेंगे फॉर डिक्शनरी, ओरिजिनल डिक्शनरी। And here we will print student info. Okay, now we will execute this. So here our original dictionary has been printed. ठीक है, ठीक है यहाँ तक? यस मैम। Okay, now let's say I want to access name from this dictionary. So how can I access? Using key we can access. जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया नेम और
कैसे एक्सेस करेंगे? स्टूडेंट इन्फो ऑफ नेम, नेम, then print name. ओके, तो इससे क्या होगा? नेम प्रिंट हो जाएगा. हियर यू कैन सी नेम किरण. वैसे ही आप एज या कोर्सेस सब प्रिंट कर सकते हैं. ठीक है. ऐसे ही अगर आपको एज प्रिंट करना है तो यू कैन राइट एज इज इक्वल टू स्टूडेंट इन्फो ऑफ एज एंड देन print age, then age. Okay, this will print name and after name it will print age. ठीक है. Now one property for dictionary we have seen is it is changeable or mutable, right? So here we see how to modify elements of dictionary. Okay, it's very simple. Let's say अगर मुझे age change करना है तो मैं क्या करूँगी? Students of age, student info of age is equal to 22. Okay, we can check it by printing. So we will write here dictionary after modifying age और यहाँ पे हम डिक्शनरी प्रिंट करेंगे. Okay, so here you can see our dictionary has been modified. Name किरण, age पहले था हमारा 21, अब हो गया 22. ठीक है. तो ऐसे कोई भी एलिमेंट आप मॉडिफाई कर सकते हैं. By using its key you can modify the element. Okay, now let's say you want to add some element to the existing dictionary. तो कैसे ऐड करेंगे? स्टूडेंट इन्फो ऑफ, लेट्स से मुझे ऐड करना है ग्रेड. ओके, देन विल प्रिंट डिक्शनरी after adding grade. Okay, and then here we will print student info and check. Okay, so can you see this grade here, which is new value we have added? yes दिख ma'am. रहा है? ठीक है, यहाँ तक कुछ डाउट? Hmm. Then next operation we'll perform is removing. Okay, तो लेट्स से मुझे कोर्सेस वाला जो एलिमेंट है वो डिलीट करना है डिक्शनरी से. तो सिंपली क्या करना है? DEL डिलीट स्टूडेंट इन्फो ऑफ कोर्सेस. DEL student info of courses. So this will delete that courses element from the list. Okay, तो यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं डिक्शनरी after removing courses. Okay, student info. If we execute this, see dictionary after removing courses. So how many elements are there now? Only 3. Previously we were having 4 elements: name, age, courses and grade.
तो उसमें से कोर्सेस हमने निकाल दिया, सो वी लेफ्ट विथ 3 एलिमेंट्स। ठीक है। Now iterating through dictionary. Iterating through dictionary means if you want to print one by one value from the dictionary. तो कल क्या किया था हमने, लिस्ट के आइटम्स हमने कैसे प्रिंट किए थे, by iterating through it for loop से, right? Just like that we can print the dictionary. तो डिक्शनरी से कैसे इटरेट करना है हम देखते हैं। सबसे पहले एक मैसेज देते हैं कि iterating through the dictionary. Okay? तो ये मैसेज मैं कॉपी करती हूँ, इटरेटिंग थ्रू डिक्शनरी। इसके बाद वी विल स्टार्ट विद अ फॉर लूप फॉर की हमें सी यूजिंग फॉर लूप अगर आपको सिर्फ कीज प्रिंट करने हैं तो आप की भी सिर्फ कीज भी प्रिंट कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ वैल्यूज प्रिंट करने हैं तो आप सिर्फ वैल्यूज भी प्रिंट कर सकते हो, या आपको की एंड वैल्यू दोनों भी प्रिंट करने हैं तो वी कैन प्रिंट बोथ। ओके, सो सबसे पहले हम वैल्यूज प्रिंट करके देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, फॉर वैल्यू या फॉर वी इन व्हाट इज नेम ऑफ आवर डिक्शनरी, स्टूडेंट इन्फो डॉट आइटम्स। ओके, लिस्ट के लिए ये थोड़ा अलग था, हम क्या कर रहे थे, सिर्फ लिस्ट का नाम यूज कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, फॉर वी इज सम टेम्पररी वेरिएबल, जैसे फॉर में आप आई लेते हो, यहाँ पे आप आई भी ले सकते हो, लेकिन ये वैल्यू है इसलिए हम वैल्यू प्रिंट करें इसलिए मैं वैल्यू ले रही हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे वैल्यू भी लेनी पड़ेगी। फॉर वैल्यू इन स्टूडेंट इन्फो डॉट आइटम, और इसके बाद हमें क्या करना है, प्रिंट वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या करेगा, फॉर लूप इट विल प्रिंट ऑल द वैल्यूज, ओनली वैल्यूज इन द डिक्शनरी। ओके, लेट्स सी। ओके, इसने क्या किया, नेम किरण। ओके, इट हैज कंसिडर्ड एवरीथिंग एज वैल्यू, इसमें भी कीज भी प्रिंट हो गए। ओके, एक और हम करके देखते हैं इससे, की कॉमा वैल्यू, और यहाँ पे अगर मैं देती हूँ की कॉमा कोलन, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे हमने सिर्फ वैल्यू प्रिंट किए फिर भी वो कीज भी दे रहा है, सो हम चेक करते हैं कि ये कैसे वर्क होता है। ओके, नाउ इट इज गिविंग अस इन प्रॉपर फॉर्मेट। पहले वैल्यूज के लिए वो ऐसे राउंड एक एक टपल दे रहा था। ओके, यू कैन प्रिंट लाइक दिस, की एंड वैल्यू। गॉट इट? कैसे इटरेट करना है फॉर लूप से, सिर्फ ये याद रखना है आपको, दिस इज डिफरेंट फॉर की वैल्यू इन डिक्शनरी नेम डॉट आइटम्स। ठीक है, एनी डाउट? मैम यहाँ पे आइटम्स और पैरेंथेसिस में जो दिया हुआ है इसे क्या करें, आइटम्स पैरेंथेसिस में जो दिया हुआ है। ये आइटम्स एक फंक्शन है, दिस आइटम्स इज अ फंक्शन which will take one, हाँ, which will give you all the items from student info, और उसमें से उस पे आप फॉर लूप लगाते हैं टू गेट वन बाय वन आइटम फ्रॉम दिस डिक्शनरी। ओके, तो स्टूडेंट इन्फो डॉट आइटम से आपको सारे आइटम्स मिलते हैं, ऑन दैट ऑल आइटम्स यू विल अप्लाई फॉर लूप टू गेट देम वन बाय वन। ठीक है, ओके मैम, ओके मैम। now some more methods we will see on dictionary, that is keys, values, items, get and pop। ओके, तो ये हम यूज करके देखते हैं, these are some methods।
सबसे पहले कीज से क्या होता है, आपको सारे कीज रिटर्न करेगा. ओके, इट विल रिटर्न अ व्यू ऑब्जेक्ट ऑफ dictionaries keys. These will return object of dictionaries values. Okay, this will return की वैल्यू पेयर्स. गेटिंग इट. कीज से आपको सारे कीज रिटर्न होंगे, वैल्यू से वैल्यूज रिटर्न होंगे. ये आइटम से कीज एंड वैल्यू पेयर सारे ही रिटर्न होंगे. ओके, गेट से क्या होता है, गेट से आप एक स्पेसिफिक की का आइटम गेट कर सकते हो. ठीक है, दिस गेट विल रिटर्न वैल्यू फॉर अ स्पेसिफाइड की. जो भी आप की स्पेसिफाई करेंगे उसकी वैल्यू रिटर्न होगी. और पॉप से क्या होगा, पॉप से क्या होता है, रिमूव होता है. ठीक है, लिस्ट में अगर आप पॉप यूज करते हो तो क्या होता है, डिलीट होता है एंड में. लास्ट का आइटम डिलीट होता है. राइट. वैसे डिक्शनरी में अगर आपको पॉप यूज करना है तो उसको आपको कुछ तो की वैल्यू देनी पड़ेगी. तो वो आप जो की देंगे वो वैल्यू डिलीट हो जाए. ठीक है, हम करके देखते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम यूज करेंगे कीज का फंक्शन. सो कीज इन द डिक्शनरी, how will we use it, student info dot keys. ठीक है, रन करते हैं. Okay, so we are getting list of keys, name, age and grade. These are the keys from our dictionary. Then we'll use what, values in the dictionary. और क्या करेंगे, student info dot values. Okay, don't forget to give this round parenthesis because all these are methods. Okay, execute. See, values in the dictionary, Kiran 22A. Okay, now जो हमने items यहाँ पे use किया, this item will give you key value pair. Okay, so print items in the dictionary and we will give student info dot items. Okay, and round parenthesis. तो अगर हम ये रन करते हैं तो आप देखेंगे कि ये सारे ही आइटम्स देगा. ठीक है, दीज आर द आइटम्स. नेम किरण, एज 22, ग्रेड E. गॉट इट. यस मैम. यहाँ तक. Now we will try to use this get method. Okay, let's say we will get the grade. So I'm defining a variable grade और यहाँ पे क्या करेंगे, student info dot get और इसमें देंगे हम grade. ओके, और यहाँ पे प्रिंट करेंगे grade using get. Grade. Okay, execute this.
सी हियर ग्रेड यूजिंग गेट इज ए। तो हमारे ग्रेड में क्या वैल्यू है ए। तो आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं आया माइंड में कि ये तो हम डायरेक्टली स्टूडेंट इन्फो ऑफ ग्रेड करके भी प्रिंट कर सकते थे या नहीं? कर सकते थे ना। जैसे अगर हमने ऐसे किया प्रिंट कैसे स्टूडेंट इन्फो ऑफ ग्रेड, इससे भी क्या प्रिंट होगा? ए ही प्रिंट होगा, राइट। तो ये गेट का क्या यूज है? ओके, सो आई विल टेल यू वन एडिशनल फंक्शनैलिटी दिस गेट हैव इज, जैसे आपने यहाँ पे लिखा गेट ग्रेड। ओके, तो ये ग्रेड प्रेजेंट है इसलिए आपको मिलेगा ए, लेकिन आपने लेट से यहाँ पे दिया परसेंटेज। ओके, तो परसेंटेज नाम से आपके डिक्शनरी में कोई की है? इज देयर एनी की अवेलेबल विथ परसेंटेज? नो, राइट। तो ये गेट में आप क्या कर सकते हो, कुछ मैसेज दे सकते हो, जैसे नो परसेंटेज फाउंड। तो अगर की प्रेजेंट है तो इट विल गिव यू वैल्यू, अगर की प्रेजेंट नहीं है तो इट विल गिव यू दिस मैसेज। ओके, so this is the additional functionality this get function have, got it। ये परसेंटेज नाम का की नहीं है हमारे डिक्शनरी में, इसलिए उसने क्या दिया यहाँ पे, नो परसेंटेज फाउंड। ओके, और परसेंटेज की जगह पे अगर आप ग्रेड लिखते हो तो इट विल गिव यू वैल्यू फॉर दैट ग्रेड, गॉट इट। आया समझ में गेट फंक्शन? now next function we are going to see is pop। ओके, तो पॉप से क्या करेंगे हम, डिलीट करेंगे। ओके, सो student info dot pop and we can give age। ओके, या फिर पहले हम ऐसे ही यूज करके देखते हैं पॉप कि लास्ट एलिमेंट डिलीट होता है या नहीं। और हियर आई विल राइट रिमूव वैल्यू student info dot pop। okay, then we can print dictionary after popping element। हम प्रिंट करेंगे स्टूडेंट इन्फो, और वो जो जब भी हम पॉप एलिमेंट पॉप फंक्शन यूज करते हैं तो ये जो रिमूव डिलीट होता है, सॉरी, ये जो जो भी एलिमेंट डिलीट होता है दैट वी कैन गेट, मतलब पॉप क्या करता है, रिटर्न करता है, जो भी एलिमेंट वो रिमूव करता है दैट इज रिटर्न। ओके, जैसे डिलीट से भी एलिमेंट डिलीट होता है लेकिन जो आपने डिलीट किया वो एलिमेंट आपको मिलेगा नहीं। वैसे अगर पॉप से आप एलिमेंट कुछ डिलीट कर रहे हो तो वो आपको यू कैन स्टोर इट इन सम वेरिएबल। ओके, जैसे हम यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हैं वो रिमूव एलिमेंट, रिमूव एलिमेंट, कौन सा है रिमूव एलिमेंट, रिमूव वैल्यू, we have stored it in remove value। okay, तो पॉप एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ओके, so this pop function for dictionary expect one argument। ओके, तो यहाँ पे आपको एक आर्गुमेंट देना पड़ेगा, कोई की देना पड़ेगा, तो वो की ही डिलीट करेगा। ओके, तो डिक्शनरी में बाय डिफॉल्ट पॉप लास्ट का एलिमेंट डिलीट नहीं करता है, जैसे लिस्ट में अगर आप पॉप करते हो तो जो लास्ट का एलिमेंट है वो डिलीट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने की दिया। नाउ
चेक करती क्या होता है, ठीक है। So here I have given age. So dictionary after copying element. Now in our dictionary we have only name and grade. Okay, तो age remove कर दिया. Okay, और जो removed element था वो removed value में हमने store किया था, तो वो यहाँ पे print किया. removed क्या था 22. ठीक है, कोई doubt है dictionary में? नो मैम। Okay. नाउ सी, जो भी हम प्रोग्राम में देख रहे हैं ना वो मैं पीपीटी में ऐड करके रख रही हूँ, ताकि आपको अब जब भी ये पीपीटी रेफर करें तो आपको इजी हो पढ़ाई करने के लिए। तो ये डिक्शनरी के, और वैसे ही मैंने लिस्ट के सब ऑपरेशंस भी पीपीटी में ऐड कर दिए, ठीक है। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपके साथ ये शेयर कर दूँगी। नाउ अनदर कलेक्शन वी हैव इज टपल। दिख रहा है आपको? यस मैम। जैसे हमने लिस्ट और डिक्शनरी देखा, वैसे ही वन मोर कलेक्शन इज देयर, दैट इज टपल। ओके, नाउ टपल्स आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन सिंगल वेरिएबल, राइट? लेकिन टपल इज डिफरेंट देन लिस्ट एंड डिक्शनरी। ओके, so tuple is a collection that is ordered and unchangeable, right? Ordered means, again, what is ordered? ओके। We can access the elements using index, right? Yes, ma'am. And unchangeable means, now this is different property than list and dictionary. Unchangeable means, डुप्लीकेट वैल्यू। yes, Non-mutable, ma'am. हाँ, immutable बोलते हैं उसको। unchangeable, Sorry. हाँ, okay. Unchangeable means immutable. Immutable means क्या होगा? yes, क्या होगा immutable मतलब? एक बार चेंज नहीं कर आपने सकते हम। चेंज नहीं कर सकते। एक बार आपने कुछ टपल डिफाइन किया, जैसे T1 नाम का, लेट से आपने कुछ टपल डिफाइन किया, ओके, उसमें आपने कुछ एलिमेंट स्टोर किए, ओके। तो ये एक बार आपने अगर टपल डिफाइन किया तो इसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। मतलब इसमें आप एलिमेंट्स ऐड नहीं कर सकते, एलिमेंट रिमूव नहीं कर सकते, एलिमेंट चेंज नहीं कर सकते। दैट इज व्हाई इट इज इम्यूटेबल, ठीक है। सो दिस टपल आइटम्स आर ordered, unchangeable and allow duplicate value, ओके। तो आपको ये सब याद रखने हैं प्रॉपर्टीज हर एक कलेक्शन के। लिस्ट में क्या था? ऑर्डर्ड, चेंजेबल एंड अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू। डिक्शनरी में क्या था? यस, डिक्शनरी के प्रॉपर्टीज क्या थे? Order, changeable, ऑर्डर्ड, not allow duplicate. डुप्लीकेट वैल्यू। ऑर्डर्ड, चेंजेबल एंड नॉट अलाउ डुप्लीकेट। वैसे टपल के क्या है? ऑर्डर्ड, अनचेंजेबल बट अलाउ डुप्लीकेट्स, सो यू कैन स्टोर same value multiple times in tuple, ठीक है। as it is ordered you can access them using index, so first item has index of 0. Now to determine length you can use len function, okay। टपल हम डिफाइन करते हैं राउंड ब्रैकेट से। आई थिंक वो पॉइंट मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया। आई थिंक आई हैव गिवन एग्जांपल, ठीक है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ टपल। तो टपल कैसे डिफाइन करते हैं? राउंड ब्रैकेट से। तो पाइथन में ये सब आप ब्रैकेट कैसे देते हो और एलिमेंट कैसे डिफाइन करते हो उससे आइडेंटिफाई होगा। यहाँ पे कहीं पे भी मैंने टपल ऐसा नाम दिया नहीं है, टपल का क्लास नेम यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। लेकिन जब आप राउंड ब्रैकेट में कुछ एलिमेंट स्टोर करोगे तो इट विल बी कंसिडर्ड एज टपल। अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ एलिमेंट्स कंसिडर करोगे तो ये होगा लिस्ट। और अगर आप
कर्ली ब्रैकेट में कुछ दोगे तो ये होगा डिक्शनरी। ओके, दिस इज हाउ इट विल बी आइडेंटिफाइड। ओके, नाउ वन मोर थिंग अबाउट टपल इज, अगर आपको कुछ टपल डिफाइन करना है जिसमें एक ही एलिमेंट है, ठीक है, तो ये एक एलिमेंट के बाद आपको एक कॉमा देके छोड़ना पड़ेगा, देन ओनली इट विल बी कंसिडर्ड एज टपल। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि अगर आपको कोई टपल डिफाइन करना है जिसमें you want only one element, so how will you define variable name equal to in round bracket element and comma? ठीक है, any doubt? नो मैम। ओके। Okay, so we have seen ये ऑपरेशंस ऑन डिक्शनरी एंड लिस्ट। ओके, वैसे ही हम टपल के ऊपर भी सब ऑपरेशंस देखेंगे, लेकिन इफ यू वांट टू चेक दिस प्रॉपर्टीज कि ऑर्डर्ड है, अनचेंजेबल है, अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज, ठीक है, तो ऑर्डर्ड तो वी कैन चेक यूजिंग इंडेक्सेस, कि हम एलिमेंट्स एक्सेस करके देखते ही हैं कि ऑर्डर्ड से एलिमेंट कैसे एक्सेस होते हैं, राइट। वैसे ही चेंजेबल है, अनचेंजेबल है, तो टपल क्या है, अनचेंजेबल। तो ये आपको अगर चेक करना है तो जब भी हम टपल डिफाइन करेंगे तो उसमें आप चेक करके देखो कि चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे डिक्शनरी के बारे में हमने क्या देखा था, प्रॉपर्टी इट डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट। ठीक है, तो जस्ट डोंट रिलाई ऑन दिस थियोरेटिकल पार्ट। आपको क्या करना है, मैंने तो डिक्शनरी का पूरा प्रोग्राम लिया, दिस इज होमवर्क फॉर यू। क्या करोगे आप, यू विल डिफाइन वन डिक्शनरी और उसमें डुप्लीकेट एलिमेंट डाल के देखो कि what it is giving। ठीक है, Okay, ma'am. बिकॉज ये ऑर्डर्ड और चेंजेबल तो हमने ट्राई किया। ऑर्डर्ड मतलब सीक्वेंस इंडेक्स से हमने आइटम्स एक्सेस किए, की से हमने आइटम्स एक्सेस किए, राइट। वो आइटम्स को हमने मॉडिफाई भी करके देखा, सो दैट मीन्स डिक्शनरी इज changeable, right? But you can try how it is not allowing you duplicate. So for that what you have to do, आपको एक ऐसा एलिमेंट ऐड करना, दो सेम एलिमेंट उसमें ऐड करके देखने, तो आपको पता चलेगा कि डिक्शनरी विल गिव यू सम एरर कि डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड इन द डिक्शनरी। ठीक है, वो आपको देखना है। वैसे ही लिस्ट लिस्ट पे तो कुछ लिमिटेशंस नहीं है, लेकिन टपल का भी जब हम देखेंगे तो ऑर्डर कैसे है, अनचेंजेबल कैसे है, डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ करता है नहीं करता है, दैट ऑल थिंग यू हैव टू चेक। ओके, तो जितने भी ऑपरेशन है वो हम देखेंगे ही, लेकिन अगर कुछ बचता है, अगर आपको कुछ डाउट है तो यू कैन ट्राई। ओके, तो आप प्रोग्राम करके देख सकते हो कि क्या होता है, यू कैन ट्रायल एंड एरर। उससे आपको क्या होगा, यू विल गेन मोर नॉलेज। अगर आप खुद से करते हो, अगर आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ डिफिकल्टीज आ रहे हैं, एंड अकॉर्डिंगली इफ यू आर ट्राइंग दैट प्रोग्राम, फ्रॉम दैट प्रोग्राम यू विल लर्न, राइट। जैसे एलियन फंक्शन है जो अभी हमने नहीं देखा है डिक्शनरी के लिए, तो डिक्शनरी पे भी एलियन फंक्शन है जो क्या देता है, इट विल गिव यू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द डिक्शनरी। तो ये अभी हमने ट्राई नहीं किया, बट यू कैन ट्राई कि हाउ एलियन इज वर्किंग, हाउ एलियन इज गिविंग यू नंबर ऑफ आइटम्स इन द डिक्शनरी। जैसे लिस्ट के लिए हमने यूज किया, वैसे ही डिक्शनरी के लिए यूज कर सकते हैं, वैसे ही टपल के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, जी मैम। एनी डाउट इन टपल? नो मैम। नो मैम। मैम अगर टपल में, हेलो सॉरी, हाँ बोलो। मैम, अगर टपल में मैम कोई वेरिएबल, मतलब जैसे कि हमने ए नाम का वेरिएबल इज हाँ, इक्वल टू और राउंड ब्रैकेट में एप्पल लिखा है और उसके बाद में मैम कॉमा लगाते हैं, अगर हम कॉमा ना नहीं, लगाएं। मुझे समझ में नहीं आया, थोड़ा लाउडली बोलो। मैम जैसे अभी हम टपल को, अगर सिंगल हमें टपल डिफाइन करना होता है तो मैं, हाँ, जैसे हमने एप्पल वाला एग्जाम देखा था, एप्पल वाला एग्जांपल देखा था, राइट। एस, जी मैम। तो मैम इसको हम अगर कॉमा ना लगाएं और उसके अलावा करके देखें तो। ओके,
ट्राई करके देखते हैं, तो वो टपल नहीं मैम अगर कंसिडर होता है। जी मैम मैम ये कहना चाह रहा है कि स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे तो क्या होगा? नहीं, वो कहना चाह रहा है कि अगर हमें टपल डिफाइन करना है विथ वन एलिमेंट, तो हम क्या करते हैं, कॉमा देते हैं, एक एलिमेंट के बाद हम कॉमा देते हैं। तो वो जी पूछ मैम रहा है कि अगर हम कॉमा ना दे तो क्या होगा, राइट? जी मैम तो हम वो कर ओके ठीक है मैम मैं समझ गया। समझ, थैंक यू मैम। ठीक है। हाँ, जी तो ऐसे जैसे क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है ना, तो दिस इज वेरी गुड कि ये क्वेश्चन ऐसे आने चाहिए। अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके माइंड में कि ये ऐसे करेंगे तो क्या होगा, वैसा करेंगे तो क्या होगा, तो आपको क्या करना है, ये ट्राई करके देखना है। कोई भी हो, अभी जो आपने क्वेश्चन पूछा वो हम यहाँ पे ट्राई करके देखेंगे, लेकिन ऐसे भी अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन आ रहे हो तो आपको क्या करना है, वो जाके ट्राई करके देखना है, ठीक है। इवन आपके पास पाइथन इंस्टॉल भी नहीं है तो देर आर सो मेनी ऑनलाइन कंपाइलर्स की जहाँ पे आप जाके इतने सिंपल प्रोग्राम तो आप बहुत इजीली कर सकते हो, जी मैम ठीक है। जी ओके, मैम ओके तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं टपल का डेमो। सबसे पहले हम एक डिफाइन करेंगे टपल, माय टपल इज इक्वल टू किस में देना है, राउंड ब्रैकेट में, ओके, 1 2 3 4 5। This is my tuple with 5 elements, right? ये टपल डुप्लीकेट अलाउ करता है या नहीं करता है? हाँ मैम। No, ma'am. नहीं करता है अलाउ, मैम अलाउ करता है। अलाउ करता है। कौन अलाउ नहीं करता है? सी टपल अलाउ Allow डुप्लीकेट duplicate. वैल्यूज। कौन अलाउ नहीं डुप्लीकेट करता है अलाउ करता डुप्लीकेट है वैल्यूज? Dictionary. डिक्शनरी में किसमें, कौन से कलेक्शन में डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड नहीं है? डिक्शनरी में मैम। डिक्शनरी, डिक्शनरी में राइट। ओके, जी मैम यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं ओरिजिनल टपल, ठीक है। Here will print my tuple। तो ये तो सबसे बेसिक ऑपरेशन है क्रिएशन का। यहाँ पे हमारा ओरिजिनल टपल प्रिंट हुआ, ओके। नाउ अभी जो आपने डाउट पूछा था वो हम करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं टपल एग्जाम्पल, और इसमें हम देंगे 1, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट करेंगे टपल विथ, नाम देते हैं इसको टपल 1, ओके, टपल विथ 1 एलिमेंट। यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे टपल, ओके। एग्जीक्यूट करते हैं, ओके। यहाँ पे प्रिंट हुआ 1, लेकिन अगर हम इसका टाइप चेक करते हैं, ठीक है, प्रिंट टाइप ऑफ टपल 1, और यहाँ पे भी प्रिंट करते हैं प्रिंट टाइप ऑफ माय टपल, ओके। अब मैं एग्जीक्यूट करते हुए सी, क्या डिफरेंस है देखा आपने? दिस इज माय ओरिजिनल टपल विथ 5 एलिमेंट्स, उसका टाइप क्या आया? यस टपल टपल, ओके। और यहाँ पे हमने एक टपल डिफाइन किया जिसमें मैंने सिर्फ एक एलिमेंट दिया और कॉमा नहीं दिया, तो उसका टाइप क्या आया? इंटीजर इंटीजर, ठीक है। तो हमें अभी हम सेम टपल में एक कॉमा देके देखेंगे। नाउ टपल इट इज टपल, ओके। आया समझ में? यस मैम
ओके, क्लासरूम पे मैंने एक लिंक शेयर किया था जहाँ पे मैंने लेक्चर के रिकॉर्डिंग अपलोड किए थे, आपने चेक किया? नो मैम। यस, किसी ने चेक किया? यस मैम, ईमेल में। क्लासरूम आपने ज्वाइन किया सब लोगों ने? मैंने क्लासरूम का एक लिंक भेजा था आपको। आपको ईमेल पे भी उसका नोटिफिकेशन आता होगा, लेकिन आपने उसके पहले आपको क्लासरूम ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आपने क्लासरूम ज्वाइन किया है? नहीं मैम। मैम आज कर ली, नहीं किया क्या? नहीं कर पाया मैं। ओके, हम चेक करते हैं। ओके, आई हैव क्रिएटेड क्लासरूम, ठीक है। और यहाँ से मैंने आप लोगों को लिंक भेजा था, क्लासरूम ज्वाइन करने के लिए इनविटेशन भेजा था। तो आई थिंक यहाँ पे सिर्फ नितेश ने क्लास ज्वाइन किया है, बाकी किसी ने भी क्लास ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है। तो आपको ईमेल पे आपके नोटिफिकेशन आया होगा, तो वहां जाके आप ये इनविटेशन एक्सेप्ट करके क्लासरूम ज्वाइन कर लो। बिकॉज ये जो क्लासरूम है यहाँ पे मैं सारा स्टडी मटेरियल और वीडियो के जो लिंक है वो यहाँ पे डालूंगी। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने जो मॉड्यूल 1 to 5 का पीपीटी था वो यहाँ पे डाला है, ठीक है। प्रोग्राम्स भी मैंने अपलोड किए यहाँ पे क्लासरूम पे। तो आप जब तक क्लास ज्वाइन नहीं करोगे तब तक आपको ये कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप सबके ईमेल आईडीज है जिनको इनविटेशन ऑलरेडी जा चुका है। तो आपको ये नोटिफिकेशन आपके ये ईमेल आईडी पे मिला होगा, तो वहां से आप एक्सेप्ट करके क्लास ज्वाइन कर लो, ठीक है। यस, यस मैम। यस मैम। और जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है उनको भी बताओ, मैं वो जो मैसेज था वो वापस डालती हूँ व्हाट्सएप के ग्रुप पे। तो प्लीज़ ये क्लासरूम ज्वाइन करो, तो आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे, जो भी मटेरियल, जो भी हम प्रोग्राम डेली देख रहे हैं। तो आई एम स्टोरिंग दैट प्रोग्राम एंड आई एम अपलोडिंग दोज प्रोग्राम हियर ऑन क्लासरूम। तो आपको क्लासरूम से वो प्रोग्राम्स भी मिल सकते हैं। और जो स्लाइड्स हम देखते हैं, प्रेजेंटेशन आप देखते हो, तो वो प्रेजेंटेशन भी मैंने एज अ नोट्स यहाँ पे अपलोड किया है, ठीक है। तो वो मैम भी कैन यू आपको मिल प्लीज जाएगा। शेयर लिंक अगेन? हाँ हाँ, मैं वापस आपको लिंक शेयर करती हूँ ये क्लासरूम का व्हाट्सएप पे, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ओके मैम, तो आज के लिए हम रुकते हैं, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, ओके। थैंक यू मैम। यस, थैंक यू। Bye, ma'am.